അത്യന്തം ആവേശകരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ സമാപന സമ്മേളനം തുടരുകയാണ്. കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ച അവഗണിച്ചും പതിനായിരങ്ങളാണ് ജോഡോ യാത്രാ സമാപനത്തിനായി തടിച്ചുകൂടിയിട്ടുള്ളത്. ശ്രീനഗറിൽ നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ സിപിഐ ഉൾപ്പെടെ 11 രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഭാഗമായി. കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയെ തുടർന്ന് വൈകിയാണ് സമാപന സമ്മേളനം ആരംഭിച്ചത്. प्रियंका गांधी जी को यहाँ पे दावत दूंगा कि वो मंच पे आके श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, यहाँ पे उपस्थित तमाम नेता, दूसरी पार्टियों से भी जो नेता आए हैं राहुल जी को നേരത്തെ ശ്രീനഗറിലെ PCC ആസ്ഥാനത്ത് രാഹുൽ ഗാന്ധി ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി. Mr. Rahul Gandhi and Mr. Mallikarjun Kharge together, they have come here where this the entire മനു ഭരത് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു. മനു, കോൺഗ്രസിന്റെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യത്തെ തന്നെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 136 ദിവസം പിന്നിട്ട് ശ്രീനഗറിൽ തന്നെ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയ്ക്ക് സമാപനമാകുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ജനപങ്കാളിത്തം, എത്രത്തോളം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പങ്കാളിത്തം എല്ലാം ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സമാപന ചടങ്ങിൽ? വലിയ ആവേശത്തോടുകൂടിയാണ് ഈ സമാപന സമ്മേളനം പുരോഗമിക്കുന്നതിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അവിടെ കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ച പ്രകടമാകുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു. ഈ കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയിലും ഈ സമാപന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ആവേശത്തിന് ഒട്ടും കുറവില്ല. ഈ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി യാത്രയിൽ തന്നോടൊപ്പം പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞു. മൗലാന ആസാദ് റോഡിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന PCC ആസ്ഥാനത്ത് ദേശീയ പതാക ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ BJPക്ക് എതിർച്ചേരി രൂപീകരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കോൺഗ്രസ് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു അടയാളപ്പെടുത്തൽ കൂടിയായിരിക്കും ഈ സമാപന സമ്മേളനം. 20-ലധികം പ്രാദേശികവും ദേശീയവുമായ പാർട്ടികളെ ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ സ്വാഗതം ചെയ്തിരുന്നു. ഏതായാലും അതിൽ 11 പേർ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇനിയും കൂടുതൽ ആളുകളെ കോൺഗ്രസ് ചേരിയിലേക്ക് BJP വിരുദ്ധ മുന്നണി രൂപീകരിക്കുന്നതിനായി കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം തുടരും എന്ന സൂചനകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ സമാപന സമ്മേളനം പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഈ NDAയെ എതിർക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ്. വരാനിരിക്കുന്ന പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയ നീക്കം കോൺഗ്രസ് നടത്തുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് ഈ സമാപന സമ്മേളനത്തിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഏതായാലും വലിയ ആവേശഭരിതമായി തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ സമാപന സമ്മേളനം പുരോഗമിക്കുന്നു. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സെപ്റ്റംബർ 7-ന് തുടങ്ങിയ ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര 4080 കിലോമീറ്ററോളം പിന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. 12 പൊതുയോഗങ്ങൾ, ഭീമൻ റാലികൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ചു. 100 ചെറുകിട യോഗങ്ങളും സംഘടിപ്പിച്ചു. 13 ഇടങ്ങളിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടു. 275 ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കുന്ന യാത്രക്കിടയിൽ ജനങ്ങളുമായി സംവദിച്ചു. 100 ഇടങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം അല്ലാതെ ഉള്ള സാമുദായിക നേതാക്കളും അതുപോലെ പൗരപ്രമുഖരുമായൊക്കെ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. അങ്ങനെ വിപുലമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ യാത്രയാണ് സെപ്റ്റംബർ 7 മുതൽ നടന്നത്. സ്റ്റാലിൻ ആരംഭിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര അതിൻ്റെ സമാപനത്തിലെത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് കൂടുതൽ കരുത്താർജിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് UPA സഖ്യകക്ഷികളൊക്കെ തന്നെ കരുതുന്നത്. വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിച്ഛായയ്ക്ക് കൂടുതൽ തിളക്കമേകാൻ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയ്ക്ക് കഴിയും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കാരണം നേരത്തെ ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധി പലപ്പോഴും പരിഹാസങ്ങൾക്കൊക്കെ വിധേയനായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ യാത്രയിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടുമിക്ക നേതാക്കളും അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ പൗരപ്രമുഖരുമായൊക്കെ അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടത്തി. ഇന്ത്യ ഇന്ന് നേരിടുന്ന നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ചകൾക്ക് വിധേയമാക്കി. കേരളത്തിൽ യാത്ര ഇപ്പോൾ
KC വേണുഗോപാൽ യാത്രയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു. യാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തവരെ അനുമോദിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും ഈ സമാപന യാത്രയിൽ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. രാഹുൽ ഗാന്ധി കൂടുതൽ കരുത്തരായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ യാത്രയുടെ സമാപനത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം എടുത്തു പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ജനങ്ങൾക്കിടയിലെ സ്വാധീനം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം കരുതുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഇത് വലിയ ഗുണം ചെയ്യും എന്നാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ. ഒപ്പം തന്നെ ഇനി നോക്കിക്കാണേണ്ടത് ഈ ഹിന്ദി ഹൃദയഭൂമിയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് मेरे भाइयों और बहनों, चुप हो जाओ। और इस मंच पे बैठे हुए और भारत जोड़ो यात्रा के जो प्रमुख श्री राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और सभी पार्टी के नेता इस मंच पे बैठे हैं। क्षमा करना, समय के अभाव से मैं सभी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं उन सबको याद करते हुए सिर्फ चंद बातें बोलूंगा, क्योंकि बर्फ बढ़ रही है। ये हम कर्नाटक से आए, ये नई चीज है हमको कि इतना बर्फ पड़े। और अब देखे नहीं, एक नया माहौल है। और खास करके जब राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चलने का और भारत जोड़ो यात्रा का उन्होंने निर्णय लिया और चलने का उन्होंने इरादा किया, तब हम लोग घबरा गए थे। अब प्रियंका जी ने ये बात कही कि जब इतना बड़ा फासला जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक आज यहाँ पर हम ठहरे, तो हमको घबराहट हो गई तो कैसा सक्सेस होगा, ये कैसा निर्णय राहुल गांधी जी ने लिया। थोड़ी देर बात कर लियो यार। लेकिन एक शेयर करके शुरू करता हूं। इतना बड़ा लंबा रास्ता उन्होंने जो तय किया, तो इसलिए डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। डर मुझे भी लगा फासला देखकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, खुद ब खुद मेरा नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। तो ये उन्होंने जो इतनी बड़ी दूरी कंप्लीट की, इसीलिए मैं हमारे पार्टी की ओर से, सारे जनता के ओर से और सारे लोगों के ओर से उनको बहुत 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 बधाई देता हूं। और उनके साथ जो यात्री चले, रात दिन उनके साथ रहे, बारिश हो, धूप हो, ठंडी हो, इसमें वो चलते हुए उनका साथ दिए 200 से भी अधिक लोग, उनको भी मैं धन्यवाद करता हूं और बधाई देता हूं। और से उसी के साथ साथ कश्मीर में मुझे
कश्मीर में जो 2-4 दिन में हमको उनके साथ छोड़ने का लोगों का जो हौसला देखा, स्पीड देखी, तो देखने के बाद हमको ये महसूस हुआ कि कश्मीर के लोग सबसे ज्यादा उदार है, लिबरल है और सबको समेट लेते हैं। ये कश्मीरियत की एक बहुत बड़ी देन है। तो इसलिए दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि उनकी जो ये यात्रा निकली, ये किसी चुनाव जीतने के लिए नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, ये उन्होंने यात्रा निकली नफरत के खिलाफ। आज जो बीजेपी और आरएसएस के लोग हर जगह नफरत फैला रहे हैं, उसलिए उन्होंने ये तय किया कि नफरत के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे, लोगों को बताते रहेंगे और हर एक से मिलने की उन्होंने कोशिश की। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, टेक्नोलॉजिस्ट के साथ, डॉक्टर्स के साथ, इंजीनियर्स के साथ और विद्यार्थियों के साथ, छोटे मोटे दुकानदारों के साथ और छोटे मोटे जो रोजगार काम करते हैं उनके साथ, किसानों के साथ, सबसे मिले और बहुत से महिलाओं से, बच्चों से मिले। सब कुछ उन्होंने देखा और चल कर देखा, सिर्फ हवा में उड़ के नहीं देखा। जो मोदी साहब हमेशा हवे में ही उड़ते रहते हैं, आज यहाँ आए, कल 8 दिन पहले मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में फिर रहे तो वो आज राहुल गांधी जी ने एक सबूत आपको दिया कि वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जोड़ सकते हैं और जनता के जो मुद्दे हैं, इन्फ्लेशन हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, ये सारी चीजों के खिलाफ लड़। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोदी जी, आरएसएस और बीजेपी के लोग इस देश में गरीब को गरीब रखना चाहते हैं और अमीर को अमीर बना रहे हैं। 1% लोग इस देश की 10% लोग इस देश के 72% संपत्ति को लूट रहे हैं और 50% लोग उनके पास सिर्फ 3% संपत्ति है। तो इसीलिए हमको इसके खिलाफ लड़ना है और हम लड़ेंगे। खासकर जो कश्मीर की समस्या है, यहाँ पर आपको यूनियन टेरिटरी बनाया। യാത്രയുടെ സമാപനം കുറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സമ്മേളനത്തിൽ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ തത്സമയ സംപ്രേഷണമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. വെറുപ്പിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെയാണ് ഈ ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല, രാഷ്ട്രീയപരമായ ഒരു നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര പ്രധാനമായി ലക്ഷ്യം വെച്ചത്, മറിച്ച് ഭാരതത്തിൽ വിഘടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ ഒന്നിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു നീക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണെന്നാണ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇത് ഈ വെറുപ്പിനെതിരെ, രാജ്യത്ത് പടർത്തിയിരിക്കുന്ന വെറുപ്പിനെതിരെയുള്ള ഒരു നീക്കമായാണ് ഈ ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഈ യാത്രയിൽ ഉടനീളം സാധാരണക്കാർ ഉയർത്തുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ആണ് ഉയർത്തിക്കാണിച്ചത്. പണപ്പെരുപ്പവും അതുപോലെ വിലക്കയറ്റവും വലിയ വിഷയങ്ങളായി ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ യാത്രയിൽ കഴിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഏതായാലും കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ച നടക്കുമ്പോഴും നിരവധി ആളുകളാണ് ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ സമാപനം കുറിക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആവേശം ഈ കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയിലും ചോരാതെ ഈ യോഗത്തിൽ പ്രകടമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ചരിത്രപരമായ ഒരു അടയാളപ്പെടുത്തൽ കൂടിയായിരിക്കും ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര എന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. രാഷ്ട്രപിതാവ് വെടിയേറ്റു വീണതിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ ഈ നാട് ഓർമ്മകളിൽ വിതുമ്പുന്ന ഒരു നിമിഷമാണ്. ആ ദിനത്തിലാണ് ഈ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ സമാപന സമ്മേളനം നടക്കുന്നത്. കശ്മീരിൽ നേരത്തെ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സമാനമായ രീതിയിൽ
ദേശീയ പതാക ഉയർത്തിയതിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ, വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉയർത്തിയതിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ കൂടി രാജ്യം അയവിറക്കുന്നു എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഏതായാലും വലിയ ആവേശത്തോടുകൂടി ഈ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ ആവേശോജ്വലമായ സമാപനം ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയ്ക്ക് 136 ദിവസം പിന്നിട്ട് കന്യാകുമാരി മുതൽ ശ്രീനഗർ വരെ പൂർണ്ണമാകുന്ന ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര കോൺഗ്രസ് ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ഏറെ പ്രതീക്ഷകളോടുകൂടി തന്നെയാണ്. പുതിയ പ്രതിപക്ഷ ഐക്യനിര രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കായി മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിച്ചുകൊണ്ട് AICC അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെ സംസാരിക്കുക കൂടിയായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കാലത്താണ് കോൺഗ്രസിന് പുതുജീവൻ നൽകിയുള്ള രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഇന്ത്യ യാത്ര. പ്രതിപക്ഷ ശക്തി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ രാഹുൽ നടന്ന് പടർന്ന വഴികൾ ഈ കാലത്തെ ഉജ്ജ്വല രാഷ്ട്രീയ മുഹൂർത്തങ്ങളായി. രാജ്യം വീണ്ടും ഒരു പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ രാഹുലിന്റെ ജോഡോ യാത്ര നൽകിയ ഊർജ്ജം കോൺഗ്രസിൽ എത്ര നാൾ ആവേശം നിറയ്ക്കുമെന്ന് കൂടിയാണ് രാഷ്ട്രീയ ലോകം കാത്തിരിക്കുന്നത്. वरिष्ठ नेता, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, विपक्षी दल के वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। आप आज यहाँ बर्फ में खड़े हैं, मगर आप में से किसी को सर्दी नहीं लग रही। आप बारिश में खड़े हुए, कोई भीगा नहीं। गर्मी में आपको गर्मी नहीं लगी, सर्दी में आपको सर्दी नहीं लग रही है, क्योंकि देश की शक्ति आपके साथ है। प्रियंका की बात मैं सुन रहा था। प्रियंका ने कहा मेरे मैसेज के बारे में, प्रियंका ने कहा नॉर्मली होता नहीं है, मगर मेरे आंख में आंसू आए। क्योंकि मैं कन्याकुमारी से और पूरे देश में पैदल चले। मैं सच बताऊं, आपको अजीब लगेगा, मगर मैं बहुत सालों के लिए हर रोज 8-10 किलोमीटर दौड़ता हूं। तो मैंने सोचा था देश कन्याकुमारी से कश्मीर चलने में इतनी मुश्किल नहीं होगी। मेरे दिल में था कि आसान होगा, फिजिकली मेरे लिए मुश्किल काम
ये ब्लू छाता। मैंने सोचा था मुश्किल काम नहीं होगा। मैं काफी कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा अहंकार आ गया, जैसे आ जाता है। मगर फिर बात बदल गई। जब मैं छोटा था, अरे छाता वाला व्हाइट वाला फिर फुटबॉल खेलता था। और कॉलेज में जब मैं फुटबॉल खेल रहा था, एक बार मुझे बहुत जोरों से घुटने में इंजरी हुई थी। मैं उसको भूल गया था। घुटने में दर्द नहीं होता था, भूल गया था उसको। दर्द गायब हो गया। मैं क्या कर रहा था? मगर कन्याकुमारी से 5-7 दिन बाद घुटने में प्रॉब्लम आई, और जबरदस्त प्रॉब्लम आई। पूरा अहंकार उतर गया और मैं सोचने लगा, क्या मैं ये जो 3,500 किलोमीटर है, क्या मैं इनको चल पाऊंगा या नहीं। तो जो मैंने सोचा था आसान काम होगा, वो काफी मुश्किल हो गया। मगर फिर मैंने किसी न किसी तरीके से ये काम पूरा कर दिया। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं आपको बोलूं तो दर्द सहना पड़ा काफी, मगर सह लिया। रास्ते में एक दिन मुझे दर्द हो रहा था, तिरंगा भाई, काफी दर्द हो रहा था, और मैं सोच रहा था 6-7 घंटे और चलने हैं। और उस दिन मुझे लग रहा था कि आज मुश्किल है। और एक छोटी सी बच्ची आई, दौड़ती हुई आई मेरे पास, और मुझे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिखा है, मगर तुम अभी मत पढ़ो, इसको बाद में पढ़ना। और फिर वो मुझे गले लग के भाग गई। फिर मैंने सोचा, अब पढ़ता हूं क्या लिखा है। तो उसने लिखा था कि मुझे दिख रहा है कि आपके घुटने में दर्द है, क्योंकि आप जब उस पैर पे वजन डालते हो तो आपके चेहरे पे दिखता है कि दर्द। मैं आपको बताना चाहती हूँ, व्हाइट वाला आप व्हाइट छतरी हमारी नहीं चल सकती, व्हाइट वाला आगे वाला, क्योंकि मेरे माता पिता नहीं चलने दे रहे। मगर मैं दिल में व्हाइट आपके साथ, आपके साइड में चल रही, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप अपने लिए नहीं चल रहे हो, आप मेरे लिए चल रहे हो, और आप मेरे भविष्य के लिए चल रहे हो। और उसी सेकंड में, पता नहीं अजीब सी बात है, उसी सेकंड मेरा दर्द उस दिन के लिए गायब हो गया। दूसरी बात, मैं चल रहा था और उस समय, उसी समय वहां पे थोड़ी सर्दी बढ़ रही थी। सुबह का समय था और 4 बच्चे आए
पता नहीं कहना चाहिए या नहीं। तो कह देता हूं, छोटे से बच्चे थे, भिखारी थे, मोबाइल भीख मांगते थे और मेरे पास आए। कपड़े नहीं थे, मैंने देखा शायद मजदूरी भी करते थे तो थोड़ी मट्टी थी उन पे। खैर मैं ये चीजें देखता नहीं हूँ, तो मैं उनके साथ गले लगा, घुटनों पे गया, ऐसे उनको पकड़ा मैंने, इसको बोलो छाता नीचे करो, क्योंकि मैं उनकी लेवल पे छाता नीचे यहाँ से रहना चाहता था। उनको बोलो चेयर से उतर जाए। और फिर नहीं, सुनिए, चेयर पे खड़ा है व्हाइट जैकेट। नहीं, उसमें से बहुत सारी महिलाएं इमोशनल थी, मुझसे मिलकर रो रही थी, मगर उसमें बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने मुझे बोला कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको किसी ने मोलेस्ट किया है, उनके किसी रिश्तेदार ने उनको मोलेस्ट किया है। और जब मैं उनसे बोलता था, बहन मैं पुलिस को बताऊं, तो मुझे कहती थी, राहुल जी पुलिस को मत बताइए, हम चाहते हैं कि आपको ये बात मालूम हो, मगर पुलिस को मत बताइए, हमारा और भी नुकसान हो जाएगा। तो ये हमारी देश की सच्चाई है। ऐसी बहुत सारी और मैं कहानियां आपको बता सकता हूं। तो फिर मैं कश्मीर की ओर आ रहा था और मैं सोच रहा था कि इसी रास्ते पे मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं। मैं सोच रहा था कि इसी रास्ते से सालों पहले मेरे रिश्तेदार नीचे से ऊपर आए, सॉरी ऊपर से नीचे आए, कश्मीर से इलाहाबाद गंगा की ओर गए। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वापस अपने घर जा रहा हूं। घर मेरे लिए, जब से मैं छोटा था मैं सरकारी घरों में रहा हूं, मेरा अपना घर नहीं है। तो मेरे लिए घर, जिसको जो स्ट्रक्चर होता है उसको मैंने कभी घर नहीं माना। वो मेरे लिए, मैं कहीं भी रह लूं, वो एक इमारत होती है, वो घर नहीं होता है। घर मेरे लिए एक सोच है, एक जीने का तरीका है, एक सोचने का तरीका है। और यहां पे जिस चीज को आप कश्मीरियत कहते हो, उसको मैं अपना घर मानता हूं। अब ये कश्मीरियत है क्या? ये जो शिव जी की सोच है एक तरफ, और थोड़ी सी गहराई में जाएंगे तो उसको शून्यता कहा जा सकता है। अपने आप पर, अपने अहंकार पर, अपने विचारों पर आक्रमण करना। और दूसरी तरफ इस्लाम में, जिसको शून्यता यहां कहा जाता है, वहां फना कहा जाता है। सोच वही है। इस्लाम में
फना का मतलब अपने ऊपर आक्रमण, अपनी सोच पर आक्रमण, जो हम अपना किला बना देते हैं कि मैं ये हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास ये ज्ञान है, मेरे पास ये घर है, उसी किले पर आक्रमण करना, वही है शून्यता, वही है फना। और इस धरती पे ये दो जो विचारधाराएं हैं, इनका एक बहुत गहरा रिश्ता है और ये सालों से रिश्ता है, जिसको हम कश्मीरियत कहते हैं। यही सोच बाकी स्टेट्स में भी है। गांधी जी वैष्णव जनतों की बात करते थे, जिसको हम यहां शून्यता, फना कहते हैं, उसको गुजरात में वैष्णव जनतो कहा जाता है। असम में शंकर देव जी ने भी यही बात कही। कर्नाटक से हमारे यहां जो लोग आए हैं, वहां बसवा जी ने यह बात कही। केरल में नारायण गुरु ने ये बात की। महाराष्ट्र ने ज्योतिबा फुले जी ने यह बात की। और यहां इसको हम कश्मीरियत कहते हैं। लोगों को जोड़ना और दूसरों पर आक्रमण नहीं करना, अपने आप पर आक्रमण करना, अपनी कमी देखना। मैंने आपको कहा कि मेरा परिवार कश्मीर से गंगा की ओर गया था। इलाहाबाद संगम के बिल्कुल किनारे वहां पास में हमारा घर है। तो जब यहां से वो वहां गए, उन्होंने कश्मीरियत की जो सोच थी उसको गंगा में डाला था। गंगा में ले गए उस सोच को और उत्तर प्रदेश में उस सोच को फैलाया था, जिसको उत्तर प्रदेश में गंगा जमुना तहजीब कहा जाता है। तो उन्होंने, मेरे परिवार ने छोटा सा काम, कोई बड़ा काम नहीं किया। जो आपने उनको सिखाया, जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनको सिखाया, लद्दाख के लोगों ने सिखाया, क्योंकि उसमें बौद्ध धर्म भी है, उनके पास भी वही सोच, शून्यता की सोच उधर भी है। वो उसको ले गए और उस विचारधारा को, सोच को गंगा में उन्होंने रखा। तो मैं ये सोच रहा था, जब यहां आ रहा था, पैदल चल रहा था, और मुझे सिक्योरिटी वालों ने कहा था कि देखिए, आप पूरे हिंदुस्तान में चल सकते हो, जम्मू में भी चल सकते हो, मगर आखिरी जो 4 दिन हैं कश्मीर में, आपको गाड़ी से जाना चाहिए। वेणुगोपाल जी ने मुझे कहा पहले, और जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे उन्होंने कहा। 3-4 दिन पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि देखिए, शायद डराने के लिए, कि देखिए अगर आप पैदल चलेंगे तो आपके ऊपर ग्रेनेड फेंका जाएगा। तो मैंने सोचा
नहीं सुनिए, मैंने सोचा कि ऐसे करते हैं, मैं अपने घर वापस जा रहा हूं, 4 दिन पैदल चलूंगा, अपने घर के जो लोग हैं उनके बीच में चलूंगा। और मैंने सोचा कि जो मुझसे नफरत करते हैं उनको क्यों ना मैं एक मौका दूं कि मेरी सफेद शर्ट का रंग बदल दें, लाल कर दें। क्योंकि मेरे परिवार ने मुझे सिखाया है, गांधी जी ने मुझे सिखाया है कि अगर जीना है तो डरे बिना जीना है, नहीं तो जीना नहीं है। तो मैंने मौका दिया, मैंने कहा मैं 4 दिन चलूंगा, बदल दो टी शर्ट का रंग, लाल कर दो, देखी जाएगी। मगर जो मैंने सोचा था वही हुआ। जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुझे हैंड ग्रेनेड नहीं दिया, अपने दिल खोलकर प्यार दिया, गले लगे। और मुझे बहुत खुशी हुई कि उन सब ने मुझे अपना माना और प्यार से, बच्चों ने, बुजुर्गों ने आंसुओं से मेरा यहां स्वागत किया। मैं अब जम्मू कश्मीर के लोगों से और जो यहां हमारे सेना के लोग काम करते हैं, सीआरपीएफ के लोग काम करते हैं, उनको मैं कुछ कहना चाहता हूं। सबको, जम्मू कश्मीर के युवाओं को, बच्चों को, माताओं को, सबको, सीआरपीएफ के, बीएसएफ के, आर्मी के जवानों को, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को मैं कहना चाहता हूं, देखिए, मैं हिंसा को समझता हूं, मैंने हिंसा सही है, देखी है। जो हिंसा नहीं सहता है, जिसने हिंसा नहीं देखी है, उसे यह बात समझ नहीं आएगी। जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, उन्होंने हिंसा नहीं देखी है। डरते हैं, नहीं डरते हैं, देखिए डरते हैं। यहां पे हम 4 दिन पैदल चले, मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूं कि बीजेपी का कोई नेता ऐसे नहीं चल सकता है। और इसलिए नहीं क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग, इसलिए नहीं क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग उनको चलने नहीं देंगे, इसलिए क्योंकि वो डरते हैं। खैर, मैं अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को, युवाओं को, बुजुर्गों को और आर्मी के लोगों को, सीआरपीएफ, बीएसएफ लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूं। देखिए, मैं जब 14 साल का था, स्कूल में था, सुबह ज्योग्राफी की क्लास में था, मैं पढ़ रहा था, सामने बैठा था और मेरी एक टीचर आई, अंदर आई और उसने कहा, राहुल तुम्हें प्रिंसिपल बुला रहा है। मैं बदमाश था, बहुत बदमाश था जब छोटा था। बहन से पूछ सकते हो क्या क्या करता था मैं, अभी भी करता हूं।
मैंने सोचा प्रिंसिपल बुला रहा है, मैंने कुछ गलती की होगी, अब मार पिटेगी। वहां पे केनिंग होती थी, मैंने सोचा था अब केनिंग होगी मेरी। मगर जब मैं चल रहा था, जिस टीचर ने मुझे बुलाया उसको देखकर मुझे कुछ अजीब सा लगा। और जब मैं प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचा तो प्रिंसिपल ने कहा, राहुल तुम्हारे घर से फोन कॉल है। और जब मैंने उसके शब्द सुने मुझे पता लग गया कुछ गलत हो गया है। मेरे पैर कांपे और मैंने जैसे फोन अपने कान पे लगाया तो मेरे मां के साथ एक औरत काम करती है, वो चिल्ला रही थी, राहुल दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी। 14 साल का था। देखिए, ये जो मैं कह रहा हूं, ये जो मैं अभी कह रहा हूं, ये बात प्रधानमंत्री को नहीं समझ आएगी, ये बात अमित शाह जी को नहीं समझ आएगी, ये बात डोवल जी को भी नहीं समझ आएगी, मगर ये बात कश्मीर के लोगों को समझ आएगी, ये बात सीआरपीएफ के लोगों को समझ आएगी, ये बात आर्मी के लोगों को समझ आएगी, उनके परिवारों को समझ आएगी। तो उन्होंने मुझे कहा, नाम ओंगमू है उसका, उसने कहा दादी को गोली लग गई, दादी को गोली लग गई। और फिर मुझे गाड़ी में वापस ले गए, प्रियंका को मैंने स्कूल से उठाया, मैं वापस गए। और फिर मैंने वो जगह देखी जहां मेरी दादी का खून था। पापा आए, मां आई, मां बिल्कुल हिल गई थी, बोल नहीं पा रही थी। हाँ, फिर क्या हुआ, तो जो हम लोग हैं जिन्होंने हिंसा देखी है, ये जो है ना, इसको हम बिल्कुल दूसरी तरीके से देखते हैं। ये आप सबके लिए टेलीफोन है, ये हमारे लिए सिर्फ टेलीफोन नहीं है। उसके बाद 6-7 साल बाद मैं अमेरिका में था और फिर से टेलीफोन आया। 21 में टेलीफोन आया। जैसे बहुत सारे, जैसे जो पुलवामा में हमारे सैनिक मरे थे, उनके घर टेलीफोन आया होगा। हजारों कश्मीरी लोगों के घर टेलीफोन आया होगा। सेना के परिवारों को टेलीफोन आया होगा। वैसा ही टेलीफोन आया। पिता के एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे फोन किया और कहा, राहुल बुरी खबर है। मैंने उनसे कहा, मैं जानता हूं, पापा मर गए। कहते हैं हाँ। मैंने कहा धन्यवाद, फोन रख दिया। तो मेरा कहना है जो हिंसा करवाता है, जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं,
अजीत डोवल जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, वो इस बात को समझ नहीं सकते हैं, वो दर्द को समझ नहीं सकते हैं। हम समझ सकते हैं। पुलवामा के जो सैनिक थे, उनके बच्चों के दिल में क्या हुआ मैं जानता हूं। मेरे दिल में वही हुआ है जो यहां पे कश्मीर में लोग मरते हैं, उनके दिल में क्या होता है। जो फोन कॉल आता है क्या लगता है वो मैं समझता हूं, मेरी बहन समझती है। तो कल किसी जर्नलिस्ट ने मुझसे पूछा यात्रा का क्या लक्ष्य है। कहा कि यात्रा क्या अचीव करना चाहती है, जम्मू कश्मीर में क्या अचीव करना चाहती है। मेरे उस समय दिमाग में आया, मगर मैंने कहा नहीं बोलता हूं, कल भाषण में बोलूंगा। यात्रा का लक्ष्य है कि ये जो फोन कॉल हैं, चाहे ये आर्मी के हों, चाहे सीआरपीएफ के हों, चाहे ये कश्मीर के लोगों के हो, ये फोन कॉल बंद हो जाए। कि ये फोन कॉल किसी बच्चे को, किसी मां को, किसी बेटे को ना लेना पड़े। मेरा लक्ष्य ये जो फोन कॉल हैं इनको बंद करने का है। अब देखिए, बीजेपी आरएसएस के लोग आक्रमण किस चीज पे कर रहे हैं। मुझे गाली देते हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैंने आपको शून्यता की बात की, शिव की बात की, उसको मैं समझता हूं और मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूं कि जितना भी वो मेरे ऊपर प्रेशर डालें, जितनी भी गाली लगाएं, जो भी वो करें, उससे मैं सिर्फ सीखता हूं। तो मैं एक प्रकार से उनका धन्यवाद करता हूं। मगर जो मैंने आपको बात बोली पहले, चाहे वो कश्मीरियत है, चाहे वो वैष्णव जंतो है, चाहे वो शंकर देव जी हैं, बसवा हैं, नारायण गुरु हैं, तिरुवल्लुवर हैं, जो तमिलनाडु के बड़े पोएट हैं, फूले जी हैं, और जो कश्मीरियत हैं, ये इस विचारधारा पे आक्रमण कर रहे हैं। और ये जो विचारधाराएं हैं, ये इस देश की नींव है, इस देश की फाउंडेशन है। और आपने जो किया, जो यात्रियों ने किया, हम सब ने किया, इस विचारधारा की रक्षा के लिए किया है। मैंने ये काम अपने लिए नहीं किया, मैं ऐसा काम अपने लिए कभी कर ही नहीं सकता हूं। मैंने ये काम हमारे कांग्रेसी मित्रों को ये अच्छा ना लगे, मगर मैंने ये काम कांग्रेस पार्टी के लिए भी नहीं किया है। मैंने ये काम, और हम सब ने ये काम हिंदुस्तान की जनता के लिए किया है। और हमारी कोशिश है कि जो विचारधारा इस देश की नींव को तोड़ने की कोशिश कर रही है, जो विचारधारा इस देश की नींव को तोड़ने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ हम खड़े हों, मिलकर खड़े हों, नफरत से नहीं, क्योंकि वो हमारा तरीका नहीं है, मोहब्बत से खड़े हों। मैं जानता हूं कि अगर हम मोहब्बत से खड़े होंगे, प्यार से बात रखेंगे, तो हमें सफलता मिलेगी। और उनकी जो विचारधारा है, उसको हम सिर्फ हराएंगे नहीं, मगर उस विचारधारा को हम उनके दिलों से निकाल देंगे। तो आपने, देश की जनता ने हमारा समर्थन किया। हमारी कोशिश है कि हमें, बीजेपी ने एक जीने का तरीका, राजनीतिक तरीका दिखाया है। हमारी कोशिश है
कि हम एक और तरीका जो हिंदुस्तान का तरीका है, मोहब्बत का तरीका है, वो हम देश को दिखाएं, हम देश को याद दिलाएं कि हिंदुस्तान मोहब्बत का देश है, इज्जत का देश है, भाईचारे का देश। तो हमने जो कहा था, छोटा सा कदम लिया है, बड़ा कदम नहीं है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की कोशिश की। धन्यवाद। जय हिंद। ആവേശോജ്വലമായ പ്രസംഗത്തോടുകൂടി ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ സമാപന ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി. കന്യാകുമാരി മുതൽ കശ്മീർ വരെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം. ഒപ്പം തന്നെ എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിച്ചാണെങ്കിൽ പോലും തൻ്റെ യാത്രയ്ക്ക് പിന്തുണ നൽകിയ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം നന്ദി പറയുന്നു. രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ അഖണ്ഡതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വലിയ ഒരു നീക്കമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയതെന്ന് നേരത്തെ സംസാരിച്ച AICC അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെയും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയ്ക്ക് 136 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശ്രീനഗറിൽ സമാപനമായിരിക്കണം. അതിൻ്റെ തത്സമയ സംപ്രേഷണമാണ് കണ്ടത്. വാർത്തയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമാകുകയാണ്. നമസ്കാരം.